deviant behavior among juvenile delinquents with drug addiction. And the topic is in front of you: impulsivity, paranoid thought, or my independent variable. Well, dependent variable was drug addiction and deviant behavior. This is the introduction of my variables. I chose this topic because juvenile delinquency is less conducted research in Pakistan. बहुत कम रिसर्चेस हुई हैं पाकिस्तान में हमारे जुवेनाइल्स को लेकर बिकॉज बच्चों पे रिसर्च करना इज टू टफ क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अप्लाई करना मुश्किल होते हैं बच्चों से। और सबसे बड़ी बात मैंने ये टॉपिक चूज क्यों किया, आई हैव एक रिसर्च हुई थी 2018 में और 2019 में एक रिसर्च हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि पाकिस्तान में जस्ट 2000 जुवेनाइल्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान में। ठीक है, 2000 जुवेनाइल्स ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते हैं और बहुत से केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं हैं, उसमें मैक्सिमम जो रिपोर्ट होते हैं। ये एक रिसर्च थी 2018 में ताराड़ ने की थी, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट ये प्रोविंसेस में है, आप देख सकते हैं नंबर्स जितने भी ये सारे जुवेनाइल्स रिपोर्ट में मोस्टली मेल्स हैं, फीमेल रिपोर्ट होते ही नहीं है। देयर मस्ट बी सम कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, लाइक फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, रिस्पेक्ट मैटर आ जाती है लड़कियों की कि वो रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में इसको स्टडी करने का काफ़ी इस पे स्टडीज होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने ये टॉपिक्स जो है डिसाइड किया था। conceptual framework. Objective of my study was relationship among impulsivity, paranoid thoughts, and deviant behavior. To assess the difference on the basis of demographic variables, because मैंने इनकी drug addiction जो है वो कोई ऐसा असेसमेंट टूल अप्लाई नहीं किया था, इनके डेमोग्राफिक्स में ही इंफॉर्मेशन ली थी कि वो कोई ड्रग्स यूज करते हैं तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं। And these were my hypothesis. There will be a significant positive relationship between impulsivity, deviant behavior among juvenile delinquents with drug addiction. Frequency and percentage of delinquent boys with drug addiction will be high because according to literature, मेल delinquents जो हैं वो नंबर में भी ज़्यादा हैं और उनका delinquency rate भी ज़्यादा है। That's why obviously उन्होंने ज़्यादा ही आना था। Research methodology, cross sectional research design यूज किया गया। सैम्पल पार्टिसिपेंट मैंने इनिशियली 200 पार्टिसिपेंट जो है वो डिसाइड किए थे फ्रॉम 3 jails. The one is Adiala jail, district jail Gujranwala, and the central jail Lahore. From 3 jails I have collected my data. Initially 200 participants, 100 male and 100 female. I decided to collect data from these, but due to circumstances मुझे just 155 male and only 45 females from 3 district jails. And now you can see कि हमारे पास फीमेल डेविएंट बिहेवियर बहुत है बट रिपोर्ट नहीं होती। और मुझे 3 उसमें से जिलों में से सिर्फ 45, इवन गुजरांवाला में तो थी ही नहीं, लाहौर और अडयाला जेल से मुझे कुछ मिली हैं। Including criteria was 18 years old, both male and female. Excluding criteria obviously above age range 18 years were excluded. Operational definitions and the instruments I use: Barrett impulsivity scale, revised Green and all paranoid thought scale for the paranoid thought assessment, and the deviant behavior variety scale. These are the demographic ratios. Parental education, mostly my participants were उनकी जो parental education थी वो बिल्कुल uneducated थे। इकोनॉमिकल स्टेटस की अगर हम बात करें, सोशल इकोनॉमिक की स्टेटस बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लो फैमिली से या फिर लो मिडिल क्लास से उनका लिंक था। और मैरिड, few were married, 14 were married, and profession was no profession. For 185 drug seller were 8 जो ऑलरेडी खुद ड्रग सेल कर रहे थे, वो खुद 8 लोग थे। उसके बाद prostitute were 7, and these all were under 18. Scales and psychometric properties, and these were my correlation coefficient between these variables. That was not significant positive. Was positive but not significant positive. And this was my gender-wise frequency percentage because my results were not significant positive. My correlation was not significant positive. That's why I used cross-step analysis. And which this is above me within the Barrett impulsivity scale means overall above 200 participants. From 200 participants and within gender mean 155 from 155 male and from 45 female. This is the cross tab of gender-wise frequency and percentage on the revised paranoid thought scale and non-deviant behavior scale. Drug abuse by the juvenile delinquents. You can
बॉयज थे जो कैनाबिस यूज कर रहे थे और 20 फीमेल्स गर्ल्स जो कि कैनाबिस यूज कर रही थी, और स्मोकिंग 40 बॉयज स्मोकिंग एंड 10 जो है वो गर्ल्स थी। उसके बाद हमारे पास पार्टी पिल्स, यस दिस वाज कॉमन, पार्टी पिल्स, क्लब ड्रग्स, दैट वाज द कॉमन, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली जो बच्चे आए हुए थे वो थे ही ऐसे जो कि एडोलेसेंस में थे या पार्टीज में जाते थे या अपनी किसी गैदरिंग में जाना, या उनको लेके जाया जाता था। और वो जहाँ पे आते थे, अब सोचने की बात तो ये थी कि उनकी यहाँ पे मतलब बेल वगैरह कौन करवाता था, क्योंकि वो जो लोग उनको पार्टीज वगैरह में लेके जाते थे, जो उनको यूज कर रहे थे, वो उनकी बेल वगैरह करवाने के लिए आते थे। So that's why party pills and ice, that is also was common. Ice was not common in female, मुझे कोई भी ice की female नहीं मिली, लेकिन मेल्स में ice जो है वो 20 जो बॉयज थे वो ice यूज कर रहे थे। डिस्कशन अगर जुवेनाइल्स पर डिस्कशन की जाए, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, मुझे काफ़ी अपना एक वाइड से टॉपिक लगा, बिकॉज मैं अभी भी बहुत सी चीज़ें कवर नहीं कर पाई। मैंने ये रिसर्च 2018 में की थी, एक रिसर्च ओनली इसमें मेल्स को मैंने कंडक्ट किया था। उसके बाद अभी 2022 में रीसेंट रिसर्च कंडक्ट की है, जो कि उसमें मेल और फीमेल कंपैरेटिव स्टडी को किया मैंने। तो इसमें रिसर्च यही थी कि ड्रग एडिक्शन बहुत कॉमन एस्पेक्ट है, पर्सनालिटी इश्यूज बहुत होते हैं ऐसे बच्चों की, वहाँ पे कोई ऐसा काउंसलिंग सिस्टम नहीं है जो उनको काउंसिल किया जाए। One was prostitute there and she was 15 years old and she was married thrice, 3 दफा उसकी शादी हो चुकी थी, और वो prostitute थी और वो जो ड्रग सेलर भी थी, वो ड्रग्स खुद भी लेती थी और ड्रग सेलर भी थी। मतलब वी कैन सी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो कहाँ पे लाकर है। लिमिटेशंस, यस लिमिटेशन फॉर दिस कि जस्ट मैंने 3 जेल्स को टारगेट, जस्ट 3 जेल्स को टारगेट किया गया है, जस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट से ओवरऑल कंट्री को टारगेट किया। एंड द सेकंड माय लिमिटेशन वाज दिस कि सैंपल वाज नॉट इक्विवेलेंट, मेरा सैंपल बहुत ही अनइक्विवेलेंट था। 155 मेल मींस पोलराइज्ड था बिल्कुल। तो थर्ड लिमिटेशन इज दिस इज क्रॉस सेक्शनल सर्वे डिजाइन, इसमें कोई कॉजालिटी नहीं आती, मतलब मैं इसमें मेरी जो स्टार्टिंग जो थी, मैं जो सर्च करना चाह रही थी वो ये था कि डेविएंट बिहेवियर रीजंस क्या है, बिकॉज ये टॉपिक सिलेक्शन मेरी एक, अगर मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूँ तो ये बताऊंगी कि टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया था। बिकॉज आई एम फ्रॉम अ विलेज जहाँ पे डेविएंट बिहेवियर बहुत देखा जाता है बच्चों का, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता, उसकी ना उनकी कोई काउंसलिंग होती है, ना वो रिसर्च किया जाता है। मैं बेसिकली टॉपिक रिसर्च करना चाह रही थी वो ये था कि व्हाट आर द काजेस ऑफ डेविएंट बिहेवियर, बच्चे डेविएंट बिहेवियर शो करते ही क्यों हैं। वो मैंने अपनी स्टडी को साइड बाय साइड देखा था कि बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस था, कुछ बच्चों का अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, उनको पूरा करने के लिए उनका डेविएंट बिहेवियर था, और इसके अलावा उनकी पेरेंटिंग स्टाइल वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं, तो उसकी और पीयरशिप ग्रोथ, ये 3 जो मुझे फैक्टर्स लगे हैं डेविएंट बिहेवियर के पीछे। इसके अलावा सैंपल साइज जो है वो लाहौर इन सबसे लेगा था, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते ओवरऑल कंट्री पे। एंड द टाइम स्पेंड वाज वेरी शॉर्ट फॉर मी, एंड उन डेज में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और परमिशन वगैरह गैदर करने में काफ़ी टाइम तो लग गया, बट लवली पी रिसर्च का एक टाइम स्पेंड मेरे पास कम था, इसकी वजह से मैं इसको मजीद इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकी। बट आई विल सजेस्ट कोई अगर इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहे तो ज़रूर करे, और पर्सनैलिटी टाइप्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ज़रूर डिफाइन करें, क्योंकि ऐसे बच्चों की बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं इनमें, पर्सनैलिटी उसके ऊपर पर्सनैलिटी टाइप्स बहुत इश्यूज होते हैं इनके, और इसके अलावा ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड सोशल एक्सेप्टेंस, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, इनके ऊपर काम किया जा सकता है। बिकॉज मैंने जितनी रिसर्च अकॉर्डिंग टू लिटरेचर देखी है ओवरऑल कंट्री एंड फॉरेन रिसर्चेस, कहीं पे भी इनकी ये टॉपिक्स डिस्कशन नहीं की गई। अगर डिस्कशन की गई है जुवेनाइल्स में तो ये था सोशल इकोनॉमिक्स, फैमिली सिस्टम, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली सिस्टम, एंड दिस ऑल ओनली जनरल से टॉपिक थे, मतलब जो उनकी डेविएंसी में आ रहा है उसको डिस्कस नहीं किया गया था। Indications obviously this can be used for the guidance, ताकि वो जुवेनाइल्स को मजीद किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, उनकी डेविएंसी कहाँ पे आ रही है, उस चीज में मेरी रिसर्च इंडिकेट हो सकती है। एंड दैट वाज द कंक्लूजन एंड दैट वाज माय रिसर्च।